Morning, everyone. I welcome you all to today's session. We have a very different topic with us today. That is stress management. I would call it the yoga way. We have a very trained faculty who will be delivering on this said topic. Before we start the session, let me remind you all to please put your phones on silent mode for the meeting. I request you all to please stand at attention for the Institute Motto Song to be followed by the national anthem. Thank you. भारत माता की जय। Thank you. For introducing our today's speaker, I would like to invite C. Jay Shaji, who's a past leader. Thank you, Farman. Good morning. I have a pleasant task of introducing today's speaker, Rishika Shah. Rishika is a chartered accountant by qualification. She has pursued MA in yoga and presently she is pursuing PhD. Rishika has done 20 years practice in yoga by now, and she has got the training under some of the biggest name of yoga gurus, and she has trained more than hundreds of us in yoga. Yoga is her passion, and definitely we all of us will going to gain a lot of understanding of yoga and how to manage the stress from her. Before I request her to deliver the talk, I request CA Jay Gupte sir to present a memento on behalf of all of us, along with Sri Mahesh Bagaria ji, to the speaker.
Namaste and good morning, everyone. It feels so nice to be back to a place that I can call home. I qualified to be a CA in the year 2011, which feels like an eternity ago now. And ever since then, life has thrown several curveballs at me. काफी कुछ professional changes, career changes मैंने किए in the last 13 years. Going from a practicing CA to a teacher at JK Shah classes. It was my honor, absolute honor and privilege. And I would like to always keep that learning in my mind. JK Shah sir was one of the best mentors that I could have asked for. And cut to my calling, my ikigai, which was yoga. And I started Rishika Yoga formally about 5 years ago. What started off as a mere CSR activity, if I want to call it, because I'm amongst CAs. It started off as CSR, trying to give back to my people, trying to give back to people whom I call friends and family, and which has grown into a company of 20 people now. And it just feels surreal almost that I was given the opportunity to even pursue my research studies in yoga, which is so far away from CA. हम गणित और आंकड़ों से निकलकर मुझे ले गया योग एक सांख्य के पद पर, जिसका मतलब भी नंबर ही होता है. सांख्य का मतलब भी नंबर ही कहा गया है, बट मुझे जिस ओर ले गया वो था सांख्य, जो भगवत गीता में लिखा गया. So I've been blessed and I'm honored today to be delivering this to you all. आज मैं जो कुछ भी यहाँ कहने जा रही हूँ, please do not treat it as my knowledge. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ. एंड जो कुछ भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है that I have been able to learn this from some of the greatest gurus that have walked this earth. So I'm just a medium, and if I do falter anywhere, I would like to apologize to all of you all in advance. So starting with my seminar today, I would like to give you a brief introduction. So Purvi so happened to call me, my dearest Purvi, whom I really like to thank for, giving me this opportunity. And she told me, why don't you take a session on work-life balance? And मेरे दिमाग में तुरंत वो balance word खटका. हम CAs हैं, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है balance में. हम balance sheet tally करने में लग जाते हैं. फिर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करते करते हम एक बैलेंस बनाते हैं ऑफ आवर बैंक. हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक बजट पे चलता है. वो बजट में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं कि हमारे पास इतने फंड्स हैं, हमें यहाँ पे इस तरीके से लगाने हैं. सो ये समझना कि एक सीए की जिंदगी में बैलेंस नहीं हो, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बैलेंस शब्द तो हमें सीधा सीपीटी के सी एंट्रेंस के दिन से सिखाया जा रहा था. And to assume that there is no balance was quite surprising. फिर मैंने सोचा कि मेरी शुरुआत योगा में कैसे हुई. Is it okay if I switch languages between English and Hindi? क्योंकि मेरी नेचुरल लैंग्वेज हालांकि इंग्लिश थी, बट कुछ सालों से मैं सिर्फ संस्कृत पढ़ते जा रही हूँ, तो मेरे पास कुछ शब्द हैं जो सिर्फ संस्कृत से आते हैं. एंड मेरी थोड़ी वोकैबुलरी इंग्लिश में शॉर्ट पड़ती है मुझे कभी कभी. सो हुआ ये कि जब पूर्वी ने मुझसे कहा वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर योगा, थ्रू योगा फॉर सीएस, आई थॉट ये बहुत ही विचित्र सा एक क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, जो कि सेम सवाल आया था जो हमारे एकदम पूर्वज, जब ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट टाइम इस धरती पे रखा गया, तो यही सेम सवाल उसके मन में भी आया कि ये कहाँ हूं मैं, कहाँ आ गया हूँ. यहाँ नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने इतने सारे पशु पक्षी हैं, और मैं यहाँ आ गया हूँ जिसके पास एक दिमाग दे दिया भगवान ने, जिसको एक मन दे दिया भगवान ने, और मैं यहाँ कैसे एग्जिस्ट करूंगा. ये बैलेंस जो है ना, ये तब से शुरू हुआ.
तो मनुष्य ने सोचा अब मैं आ तो गया हूं, नाउ आई हैव टू को एग्जिस्ट विद दिस यूनिवर्स, आई हैव टू क्रिएट अ साम्य, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एंड तब से शुरू हुई जो हमारी खोज, वो थी बैलेंस की। एंड 3 कॉन्सेप्ट उससे निकले। कैन आई शेयर द पीपीटी? Yeah, this. Just go to the slides. I'll just check it. Can we just play it? आ रहा है, एक बार स्लाइड्स चेंज करके दिखा दो मुझे। थैंक यू। सो तब से आई हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुरुष, मैं हूं। पुरुष मतलब यहाँ पर इसका एक जेंडर का हम अर्थ नहीं समझेंगे, ये पुरुष और महिला वाला पुरुष नहीं है। पुरुष मीनिंग द कॉन्शियसनेस। तो मैं आ गई इस धरती पर, अब मैं हूं तो मेरे अलावा भी कुछ है। अगर मैं हूं तभी तो मेरे बाहर कुछ है, अगर मैं नहीं तो बाहर कुछ भी नहीं। तो आया दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको कहा गया प्रकृति, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। एंड उसके बाद इस पुरुष ने देखा कि कोई तो है जो ये जगत चला रहा है। एक सेट टाइम पर सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, एवरीथिंग गोज एट इट्स ओन रिदम एंड पेस। कुछ चीजें थी जो उसको सेंस, ही जस्ट कुड नॉट मेक सेंस ऑफ इट। तो उसको लगा कि कुछ तो एक शक्ति है जिसने मुझे भी यहाँ डाला और जिसने इस पूरी प्रकृति का निर्माण किया, और उसको शब्द दिया गया ईश्वर। सो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट आए जो कि स्तंभ है हमारे सांख्य और योग के, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। इससे पहले कि मैं आपको इसके आगे का थोड़ा ज्ञान दूं, I would like to acknowledge the following people for teaching me this knowledge of yoga. My Guruji Avdut Baba Shivanand, without whom I would have never learned everything that I know, whether it was the Tripura Rahasya. उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बहुत सरलता से दे दी, भगवद गीता, काफी सारी चीजें खेल खेल में दे दी, all when I was 12 years old. So मैं सिर्फ 12 साल की थी मात्र जब से उन्होंने मुझे ये ज्ञान देना शुरू किया, not knowing that someday I will be able to use it. My teachers at Kaivalya Dham, Professor Dilip Doneria and Deepak sir, जिनके कारण मुझे बहुत सारा एक मौका मिला बहुत बड़ा to research on the subject of yoga. My very, very valuable Dr. Sriram Agashe sir, who is one of the greatest philosophers of modern yoga. Very simple man, used to teach at KJ Somaya College, Vidya Vihar, and has retired just few years ago. My family, Shayan Taparia, of which some of them are present here, who have really laid down my foundation in being a speaker, who have given me the understanding of life and who always supported me. So with that, I would like to proceed. इस सेक्शन को, आज के पूरे सेमिनार को मैंने 4 भागों में आपके लिए डिवाइड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें टेबल्स की आदत है, तो जहां तक हो मैंने इस पूरे ज्ञान को, जो कि बहुत बिखरा हुआ ज्ञान है, उसको आपके लिए एक सीए की तरीके से, आई हैव ट्राइड टू यूज माय सीए माइंड टू टैबुलेट इट फॉर यू ऑल। इन द फर्स्ट सेक्शन हम ये, अब जैसे कि मैंने कहा प्रकृति और पुरुष, ये आया कहां से, यू वर्सेस द मी। सो बिग बैंग थ्योरी, जब तक बिग बैंग थ्योरी हुई, एवरीवन आई अज्यूम नोज द बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम कहते हैं एक पुरुष और एक प्रकृति जब आपस में भिड़ी, तब हुआ इस जो दुनिया का निर्माण, जिसको हम कहते हैं सृष्टि का निर्माण, शुरू हुआ विद द बिग बैंग थ्योरी। इसका एक वेस्टर्न टर्म है कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। इसके पहले जो प्रकृति थी ना, ये एकदम बैलेंस्ड थी, एकदम सत्व रजस तमस, ये नाम सुने होंगे अगर आप लोगों ने। ये 3 गुण हैं, ये बहुत बैलेंस में चल रहे थे। सडनली पुरुष आया कांटेक्ट में और इसने इसका बैलेंस बिगाड़ दिया। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, बिगाड़ने वाले भी तो हम ही हैं। और अब हम उस स्थिति में आए कि हमको लगा ओहो ये तो बिगड़ गया, अब मैं इसके साथ कैसे को एग्जिस्ट करूं। तो शुरुआत हुई स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, स्टडी ऑफ द प्रकृति। जैसा कि मैंने कहा, पुरुष आया, उसने देखा नदी, पहाड़,
पेड़ पौधे, पक्षी, और उसने कहा मैं स्टडी करता हूं इन लोगों को। तो आए लॉज ऑफ साइंस, जो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी बढ़त हुई, एंड ऑफ लेट हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, पढ़े हैं न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, आई थिंक स्कूल में हम सभी ने पढ़े हैं। बट इन 650 BCE, मतलब जिस समय का हम शायद सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऋषि कनड़ करके हुए थे जिन्होंने वैशिष्टिक सूत्र दिए हमें। एंड इफ यू एवर हैपन टू गूगल पे, इट्स वेरी रेडीली अवेलेबल, अगर आप गूगल करेंगे वैशिष्टिक सूत्रस ऑन द 3 लॉज ऑफ मोशन, so you will clearly see it, Vedah Sanyog Vishesha Virodhi, meaning every action has an equal and opposite reaction. This was given some countless years before Newton actually published it for the modern world. So ये कहाँ से शुरू हुआ? हमारे philosophers बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि ये दुनिया किस बेसिस पे चलती है, तो पहले स्टडी की दुनिया की, फिर उनको रियलाइज हुआ ये दुनिया की स्टडी करके भी ना मेरे अंदर कुछ बैलेंस नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ जान पा रहा हूं कि ये दुनिया चलती कैसे है, अब मैं इसमें फिट कैसे हूं वो तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। अभी भी मेरी स्टडी जो थी वो बाहर तक सीमित थी। तो फिर उन्होंने चलना शुरू किया अंदर की ओर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेल्फ। सो ये शुरुआत कहां से हुई? इम्बैलेंस भी हम ही ने लाया। फिर हमने सोचा अब बैलेंस में आते हैं, तो हमने शुरू किया पढ़ना दूसरे को। ये हम भी करते हैं अक्सर, हम करते हैं जब हमारे जीवन में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो हम खुद को पढ़ने के बजाय पहले बाहर वाले को पढ़ते हैं। वी ऑलवेज स्टडी द ऑपोजिट पर्सन फर्स्ट, एंड जब हमें लगता है कि भाई इससे मेरी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हो रहा, इट इज ओनली देन दैट वी मूव इनसाइड। सो सेम हैपेंड टू देम, एंड वहां से शुरू हुई हमारे पतंजलि योग सूत्र, ईश्वर दास के सांख्य के सूत्र, एंड फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आके हमें भगवत गीता। There are several schools of philosophy. When I talk about Indian philosophy, 6 schools of philosophy हमें मिली, बट मैं आज अपने आप को सीमित रखूंगी सिर्फ सांख्य और योग से, क्योंकि ये थोड़े से नोन कॉन्सेप्ट्स है। चलते फिरते कभी बचपन में किसी ने गलती से रामायण महाभारत टीवी पे देख ली होगी तो थोड़ा बहुत आपको एलियन नहीं लगेगा, वरना जो मेरी हालत हुई थी सीए से जब मैंने पीएचडी के लिए ट्रांजिशन किया वही आपकी याद हो जाएगी। अब घर जाएंगे एक सरदर्द लेकर। सो आई हैव ट्राइड टू कीप इट टू टॉपिक्स दैट आर वेरी वाइडली नोन, एंड थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में आप सभी को होगी। या सो वहां से शुरू हुई द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्व्ड वाज द यूनिवर्स, ऑब्जर्वर वाज द पुरुष। तो मैं यूनिवर्स, प्रकृति से मैंने मेरी नजर स्वयं की तरह घुमाई, और वहां पर आया द 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। अब उसके बाद आता है, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, बड़ी थोड़ी अजीब सी है, ये बैलेंस हो गई है। हमारी होती नहीं है यूजुअली, और हम किसी के तकलीफ में घूमते रहते हैं कि कैसे बैलेंस करें हम हमारी बैलेंस शीट को। ये बैलेंस शीट है, एक तरफ मैंने डाल दिया जो आपको लगता है कि ये दुनिया है, और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया जो आपको लगता है आप खुद हो। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं, ऑफिस में जो काम है, मेरी टैक्स फाइलिंग रिटर्न डेट, ओ माय गॉड, ये बाहर की दुनिया, स्ट्रेस। पहले बाहर की चीजें देखते हैं बिकॉज वो सबको समझ में आएगी बहुत आसानी से। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, स्ट्रेस। टारगेट, अरे भगवान मुझे तो इस बार कम से कम इतने क्लाइंट और जोड़ने थे, हम सब प्रैक्टिस में है, राइट? सो वंस यू बिकम अ पार्टनर, और एक वैष्णव का धर्म होता है काम की बढ़त करना, तो उसने हमें एक स्ट्रेस दे दिया। फिर आते हैं हमारे कलीग्स। कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनके आसपास काम करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, आई हैव बीन ब्लेस्ड। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके आसपास आ जाते हैं कुछ अजीब से लोग, तो वापस से स्ट्रेस आ गया। फिर आए बॉसेस, ये तो शब्द में ही झोल है, और उससे बड़ा झोल है क्लाइंट्स। हाँ, आपका क्लाइंट आपको रात बेरात फोन करता है, एन मिनट 11th आवर में फोन करेगा, कल मेरी रिटर्न फाइलिंग की डेट है, आज मैं डेटा पहुंचा रहा हूँ। आर यू स्ट्रेस, यस और नो? I think I have gone through this last day, and उसके साथ साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, तो आया और बड़ा स्ट्रेस। अब क्या करें, पेनल्टी लगेगी, यस। फिर उसके बाद आती है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। दुनिया ने ना हमें एक रूल दे दिया कि
24 पे छोकरी, 27 पे बच्चे, और उसके बाद जिंदगी सेट। तो मतलब आपको सेटल होने के लिए ये टाइमलाइन दे दी दुनिया ने कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इट्स अ वर्ल्ड्स प्रेशर ऑन यू व्हिच सबकॉन्शियसली नाउ बिकम सेल्फ एक्सपेक्टेशन। यू डोंट इवन रियलाइज कि आधा तो आपका स्ट्रेस है ना, वो खुद के पास से ही आता है, कोई आपको देता नहीं है। क्योंकि आपने सोच लिया है मुझे जाना है अंटार्कटिका नेक्स्ट ईयर, तो मुझे कुछ भी करके इतने पैसे तो कमाने पड़ेंगे कि मैं एक ट्रिप पे 50 लाख खर्चे कर सकूं। We have unreal expectations of ourselves. I am talking about things that I go through because I am a travel freak. So मैं हमेशा मेरी लाइफ में एक ही स्ट्रेस होता है कि मुझे खाली घूमने जाना है, तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं घूमने जा सकूं। But everyone has different self expectations of themselves, which leads to stress. And the last is nothing but work travel. And ये जो लोग ऑडिट में हैं उनको बहुत ही बखूबी समझेगा। हमें ऑडिट के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें अच्छी जगह देते हैं रहने के लिए, और कुछ होते हैं जो कि मतलब हमें ऐसी जगह देते हैं रहने के लिए कि हमें लगता है हम कब ये ऑडिट खत्म करें, हम आंख बंद करके टिक 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 करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। सो इट इज वर्क ट्रैवल विच गिव्स यू अनदर स्ट्रेस। अब आते हैं लाइफ, हमने कहा ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये तो वर्क ने आपको स्ट्रेस दे दिया। अब लाइफ भी आपको स्ट्रेस दे रही है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपको लाइफ बहुत स्ट्रेस दे रही है। आपकी फैमिली, ये किस किस के साथ हुआ है जब आपके रिटर्न फाइलिंग का एकदम ड्यू डेट होती है और घर पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इवेंट आ जाता है और आप नहीं जा पाते हो, तो आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हो ना, या तो आपकी माता पिता, या तो आपकी धर्म पत्नी, या आपके पति, या तो आपके बच्चे, वो आपको इतना स्ट्रेस दे देंगे कि हाउ कुड यू इग्नोर अस। हम आपका परिवार है, आप हमें कैसे इग्नोर कर सकते थे। स्ट्रेस, भयंकर स्ट्रेस। The next, friends. You know, it's said that after a certain age in life, friends actually become more of a stress because उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। You know, the biggest proof of aging is कि आप एक प्लान बनाते रहते हो कि मुझे आज मेरे दोस्तों के साथ मिलना है, and life happens to you, और वो प्लान करते करते 6 महीने निकल जाते हैं, तो स्ट्रेस आ गया। Then comes personal hobbies. ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण यही रहा है। You know, the problem is if you are someone who has hobbies, and I had a bunch of them. बहुत ही कम उम्र से मैं एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर थी, एंड मेरे कुछ हॉबीज इस प्रकार की थी कि बहुत टाइम मांगती थी। मैं सितार बजाती हूँ, तो यू नो आपको रियाज करना पड़ता है दोनों ही चीजों में। अब रियाज के लिए टाइम, मतलब आप जब इफ यू नो एनी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ऐसा नहीं होता है कि आप 1 घंटा बैठो सितार बजाओ निकल लो। यू हैव टू सिट विद इट फॉर a few hours, spend time with your sitar. That's how music, that's how anything good is made, right? तो मुझे स्ट्रेस होने लग जाता था, हे भगवान अब मैं कैसे करूं। और when you're not able to give time to your hobbies, तो और गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड एवरीवन विल हैव वन हॉबी इन देयर लाइफ। हाँ, ये अलग बात है कि हम शायद उसे दबा चुके हैं कहीं अंदर, पर हॉबी सबके पास होती है। लाइफ हमें उसको सिखा देती है, उसको दबाने के लिए, कि अगर आपको पेंटिंग का शौक है पर आपको दुनिया बोलेगी क्या पिकासो बनेगा, then you leave it. You think that I'm not good enough. But शौक हर किसी का, बहुत एक स्ट्रॉन्ग शौक हर किसी को भगवान ने दिया है, which is called as hobbies. Then comes self care. ये बहुत बड़ी दुविधा है आज के तारीख में। हमारे पास गूगल ने, हमारे पास सोशल मीडिया ने इतना स्ट्रेस दे दिया that you have to look a particular way. तो अगर आप मोटे हो तो प्रॉब्लम, अगर आप पतले हो तो प्रॉब्लम, अगर आप ग्लूटेन खा रहे हो तो प्रॉब्लम, अगर आप दूध पी रहे हो तो भी प्रॉब्लम। बट मैं तो बड़ी हुई दूध पी के, एंड सडनली मैं एक सेमिनार में गई। आई वाज गिविंग अ लेक्चर एट HR कॉलेज, लास्ट टू लास्ट वीक की ही बात है, एंड आई आस्क्ड फॉर टी, तो उसने मुझे लाके दी ब्लैक टी। और मुझे आदत है मेरी चाय की, दूध जो चाय दूध कहते हैं, बचपन से मैं चाय दूध पीकर बड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा ब्लैक टी। मैंने कहा दूध का है इसमें। आप तो योगा प्रैक्टिस करते हो, आप दूध पी रहे हो। तो मैंने कहा कौन से लोगों ने कहा कि दूध नहीं पीना है। जहां तक मैंने पढ़ा है हठ योग प्रदीपिका में, तो आहार में कहा गया है दूध और शक्कर। हमारा आहार, if I ever get the opportunity to talk about diet to you all, I will tell you, हमारा जो योगियों का डाइट है वो बहुत अलग है। उसमें शक्कर और दूध खाने के लिए हमें कहा गया है forcibly।
एंड ये मुझे कह रहा है ना शक्कर मिलेगी ना दूध मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से दूध लाया, उसमें शक्कर नहीं, और मैं मेरी चाय में 2 चम्मच शक्कर लेती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ स्ट्रेस, कि अगर अब मैंने इससे शक्कर मांग ली तो ये और जज करेगा मुझे कि भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो शक्कर मांग रही है। तो उस दिन मैंने बड़ी स्ट्रेस, एकदम छाती पे सीने पे हाथ रख के मैंने वो कैसे नाक बंद करके वो चाय गटकी, क्योंकि उसमें शक्कर नहीं, मेरे को स्वाद नहीं। एंड आई हेटेड दैट टी, सो इट क्रिएटेड स्ट्रेस। कहाँ से आया ये? द बिलीफ कि यू हैव टू बी हेल्दी इन अ सर्टेन वे। स्ट्रेस ये हम हर किसी के साथ होता है आजकल। अब मैं उस दिन बहुत टाइम के बाद डिपार्टमेंट में गई, इनकम टैक्स, एंड मैं बहुत शॉक थी कि आजकल वहां पर भी सब लेमन टी ऑफर करते हैं। मैंने कहा ये क्यों? तो कहा कि एवरीवन फोकसिंग ऑन हेल्थ। एंड मेरे को इतना विचित्र लगा ये कॉन्सेप्ट कि आप दिन भर एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपका कोई मूवमेंट नहीं, और आपको लगता है कि आप वो ग्रीन टी पीने से पके हो जाओगे। ये कहाँ किसने सिखा दिया? बट social media has made us so unaware. At the same time, it has given us information which is not necessary. Stress. Then the next thing is cultural interest and belief. अब ये भी मेरे साथ हाल ही में हुआ। मैं हूँ जो पिछले 5 सालों से, जैसे मैं पूर्वी को कह रही थी, मैं सिर्फ योगा पैंट टी शर्ट में घूमती हूँ। मैंने ब्लेजर आज कुछ 5 साल बाद एक ब्लेजर पहना है। एंड मैं पढ़ती हूँ सिर्फ रोज सुबह भगवत गीता का एक अध्याय और रामचरितमानस का एक कोई भी पाठ। अब जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मेरी कल्चरल बिलीफ, मेरा बिलीफ था वो, कि मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज आई हैव 5 सालों में मैंने इतना कुछ पढ़ा है अबाउट इंडियन philosophy, Indian culture, from studying about Nalanda being burnt down to our scriptures being lost. It almost felt like, oh, as a yoga practitioner, as a yogi, I was being blessed with something जो मेरा था मेरे पास वापस आ गया। आपकी कोई भी चीज आपको वापस मिलती है दरों पर। मेरे को लगा, हम सभी को लगा। So I happened to post something on social media which said it is a very, very happy day. And then that was no more a happy day for me, because came 10 liberals who inundated my inbox. How can you be happy? And I was like, but मैं खुश हूँ, but how can you be happy? हाँ, मतलब वहाँ पे, and it went into a very political debate. अब वो क्या हुआ? From cultural belief, which was supposed to give me happiness, it has now caused abundant stress to me. इसीलिए आजकल हम कहते हैं कि अपनी बिलीफ को है ना छुपा के रखो। तुम जो भी प्रैक्टिस करते हो ना उसको छुपा के रखो, बोलो ही मत, क्योंकि बोलोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। एंड लास्टली इट्स पर्सनल ट्रैवल। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मुझे अंटार्कटिका जाना ये मेरे लिए स्ट्रेस की बात है, क्योंकि मुझे जाना है। अब मुझे पूरी लाइफ मेरी अरेंज करनी पड़ेगी अराउंड इट, सो दैट गिव्स मी स्ट्रेस। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इससे मैं एक ही पॉइंट ड्राइव आउट करना चाह रही हूँ कि देयर इज नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस। ये बैलेंस्ड है, बट दोनों ही हमको स्ट्रेस दे रहा है। तो हम बैलेंस क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? स्ट्रेस तो हमें दोनों ही चीजें दे रही है, कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें स्ट्रेस नहीं दे रही है। तो फिर हम आगे बढ़े, एंड इट लेड अस टू द क्वेश्चन, फिर ये स्ट्रेस है क्या? दे तो दोनों ही रहा है। स्ट्रेसफुल तो मैं हर किस सिचुएशन में हूं, तो स्ट्रेस है क्या? और फिर पतंजलि जी ने हमें दिया, पतंजलि जी ने हमें दिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सूत्र, जिसे हम कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध। मतलब उन्होंने कहा कि स्ट्रेस कब आता है? अब इंग्लिश, I'll go back to this. English is a very funny language. चित्त का इंग्लिश में कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। अगर आप कहेंगे कि चित्त मन है, उसका नाम मनस दिया। चित्त आत्मा है, उसको तो हमने आत्मा कहा। सोल इज आत्मा, सोल इज आत्मा। तो चित्त क्या है? चित्त का ईगो, अहंकार, या everything that you can think of in English is not chitta. Then what was chitta? Chitta is the manifest which comprises of all of these, मन, बुद्धि, अहंकार। जब सबको, हर किसी चीज को आप मिलाओ तो जो आपके पास बचता है वो है चित्त। So चित्त is a concept beyond the mind, beyond the body, beyond the soul. ये थोड़ा हैवी हो सकता है, बट अब मैं इसको अगर आपको बताऊं कि अगर आपको मैं पूछूं कि आपको दुख हुआ, तो आप पॉइंट कर सकते हो कहाँ दुख हुआ?
कहाँ दुख हुआ? नहीं, दुख हुआ, आई एम नॉट सेइंग फिजिकल पेन, आई एम सेइंग आपको दुख हो रहा है, आप क्या पॉइंट कर सकते हो कहाँ दुख हो रहा है? मन कहाँ है? वेयर इज मन? वेयर इज मन? मन ब्रेन में तो नहीं है मन। मैंने एनाटॉमी पढ़ी है स्कूल में, वेयर इज ब्रेन? ब्रेन में तो पूरा एक सेरेबेलम है जो मोटर प्रोग्रामिंग करता है हमारी। मन कहाँ है? शरीर में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियक, वेयर इज मन? you know, unconsciousness कहाँ है? हम, you know, so we start progressing towards bigger terms now, yeah. Unfortunately science है ना बहुत सीमित रह गया, वो विकसित हो ही नहीं पाया to a point जहाँ वो ढूंढ ले कि मन कहाँ है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं आई, ECG, EEG सब आ गई, but हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं आई जो मन ढूंढ ले अंदर से, yeah. So चित्त is that unexplicable thing, वो है ही नहीं। मैं आपको बोलूं ढूंढो चित्त कहाँ है, तो अब जब चित्त ही नहीं मालूम कहाँ है, तो उसमें वृत्ति का निरोध में, हे भगवान ये कैसी पीड़ा, ये कैसी दुविधा। So you have reached a stage where there is more stress now because I have to understand ये stress है क्या, yeah. I will very simply explain you. चित्त is nothing but that plane, आप एक कैनवस समझिए, हाँ, एक एम्प्टी बैलेंस शीट समझिए, खोखा समझिए बैलेंस शीट का, हाँ, जिसके अंदर हमें सब चीजें भरनी है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये हम एसेट और लायबिलिटी, उसके कंपोनेंट्स है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोनेंट्स? सो चित्त एक बहुत बड़ी सी कुछ एंटिटी है जिसके अंदर ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इस चित्त में होती है वृत्तियां, ये थोड़े संस्कृत के शब्द हैं, अनफॉर्चुनेटली ना इसमें इंग्लिश का कुछ ट्रांसलेशन नहीं है, सो इवन इफ आई वांट टू आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बट वृत्तिस loosely translate into modifications of the mind. वृत्ति का मतलब जैसे ओशन में लहरें आती हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, हाँ, आपका मन है ना वो शांत एक समुद्र है, चित्त जो है वो एक शांत समुद्र है, उसके अंदर वो जो लहरें उठ रही है, वो जो सुनामी आ रही है, वो ही वृत्ति है। If I were to give you an analogy, this is the closest that I can come to. Yeah. Now, पतंजलि, the great sage पतंजलि, जिन्होंने हमें योग शास्त्र दिया, उन्होंने कहा ये जो स्ट्रेस है, ये जो चित्त में जो वृत्तियों का जो उत्पन्न होना है, यही स्ट्रेस का कारण है। फिर आए भगवान कृष्ण, जिन्होंने हमें दी भगवत गीता, और उन्होंने कहा संगात संजायते कामः, काम क्रोध विनाश, meaning it says, can I have a tissue please? Sorry. So it says संगात संजायते काम, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा अटैचमेंट है ना, वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा अगर आप किसी चीज से अटैच हो, किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी भी सिचुएशन से यदि आप अटैच्ड हो, तो आपके अंदर एक डिजायर पैदा होगी, क्योंकि मैं अटैच्ड हूं, तो या तो मुझे वो पाने की डिजायर उत्पन्न होगी, या तो अगर मेरे पास वो है तो उसको प्रोटेक्ट करने की डिजायर उत्पन्न होगी, और इसी डिजायर से उत्पन्न होगा स्ट्रेस, क्योंकि अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पा रही हूं तो भी स्ट्रेस, अगर अचीव कर लिया तो अब मैं उसको प्रोटेक्शन, संरक्षण, द वर्ड इज नाउ आई एम गिविंग ऑल माय एफर्ट टू सिंपली प्रोटेक्ट इट, एंड अगेन इट लीड्स टू स्ट्रेस। सो थैंक यू सो मच। सो भगवान कृष्ण सेड कि ये जो स्ट्रेस का कारण है, ये है अविद्या, और अविद्या से आया अटैचमेंट, इग्नोरेंस से आया मुझे अटैचमेंट। सो व्हाट इज स्ट्रेस? एज पर द टू स्क्रिप्चर्स आई हैव गिवन इट टू यू ऑल इन द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, एंड फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ 100 साल पहले इसको फॉर्मुलाइज किया, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखा, अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन। अभी आप देखिए, हाँ, वरी बोला है इन्होंने, क्योंकि मेंटल टेंशन में सारी की सारी पीड़ाएं कवर नहीं हो रही है, सो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, अ स्टेट ऑफ वरी or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our life. Yeah, meaning कि क्या बोल रहे हैं, natural human response है, मतलब जब तक आप exist करते हो स्ट्रेस तो रहेगा ही। अब ये सेमिनार यही खत्म हो जाना चाहिए, स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो हम अब क्यों आए हैं हम यहाँ? फिर अगर आप बोल रहे हो कि स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो ये पूरा सेमिनार बेकार है, एकदम यूजलेस है। तो फिर पतंजलि जी ने कहा
and I go back to Patanjali because modern science does not have an answer to it. So जब कभी मैं रिसर्च के लिए बुक्स पढ़ती हूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, बट मैं वापस से पिछले पुराने समय में चली जाती हूँ, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप देयर। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पूछा गया हाउ डू यू ओवरकम स्ट्रेस, वो चुप हो गया। उसने कहा इट इज अ साइकोसोमैटिक इशू, मतलब ये दिमाग का उत्पन्न किया हुआ खेल है, पर अब इसको मैं टैकल कैसे करूं? चुप। There was no answer. So we moved forward. There is okay. The A has come in between, but that's nothing. Okay. So ये कहा गया कि अब इसको मैं how do I overcome stress? Okay. तो आया योग, सांख्य और योग, दो हमें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ दिए गए, पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें पूरा का पूरा उल्लेख सिर्फ इसी का लिखा गया कि मैं स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करूं। अगर आपने थोड़ी बहुत महाभारत देखी है तो भगवद गीता का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन का स्ट्रेस है, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो उसको एक वॉर फील्ड में, उसको एक रणभूमि में खड़ा कर दिया गया उन 3 लोगों के सामने जो उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा देते रहे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उसके विदुर जो मामा थे ना, विदुर तो मामा थे पांडवों के, जिनको कौरवों ने बहुत छल और कपट से अपनी ओर ले लिया था। और उनको मतलब ये श्री कृष्ण की महिमा लीला समझिए कि जब अर्जुन ने कहा मुझे देखना है सेनायोर मध्यो उभयो, मतलब मुझे सेना के बीच में जाके खड़ा करो, मुझे देखना है आप मेरे सामने है कौन। तो श्री कृष्ण ने पता है क्या किया, उठा के उनको उन 3 लोगों के सामने रख दिया जो दिल के सबसे करीब थे, क्योंकि उन्हें एड्रेस करना था कि स्ट्रेस कम्स फ्रॉम अटैचमेंट। सो अर्जुन का जो पूरा फर्स्ट चैप्टर था which was causing of stress was because हे भगवान मैं कैसे मारूं भीष्म पितामह को, ये he is the closest that I've had to a father। वो द्रोणाचार्य को तुम मुझे मारने के लिए कह रहे हो जिसने मेरे कारण एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, जिसने खुद के बेटे अश्वत्थामा को वो सब नहीं सिखाया जो मुझे सिखाया, एंड आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इन लोगों को मारूं। माया, अटैचमेंट एंड दैट लेड टू स्ट्रेस। और वहां से शुरुआत हुई योग की। तो भगवान कृष्ण ने कहा योग वही है जहां आप कुछ नहीं कर रहे हो, थम जाने को योग कहा। किसको कहा योग? थम जाने को। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक अवधूत गीता में लिखा गया, नेति नेति ब्रह्मणे, मीनिंग नेति नेति, जहां कुछ नहीं है ना सिर्फ वही ब्रह्मण है, सत्य सिर्फ वही है जहां वॉइड है। वॉइड आप समझते हो? वॉइड। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड टेल मी हमें मेडिटेशन सिखा दो प्लीज, एंड आई absolutely dislike taking meditation classes because कोई किसी को मेडिटेशन सिखा ही नहीं सकता। मेडिटेशन वो है जो भीतर से आता है, हम सब नेचुरल योगीज हैं। एक क्षमता कि आप खुद के साथ नेति नेति की अवस्था में बैठे रहे, शून्य की अवस्था में बैठे रहे, वही योग है। या योग का जो वर्ड है वो आया युज से, खुद से जुड़ना। अब हमने वापस से शुरू में जाते हैं, आप सोचोगे कहाँ ले आई, मैं वही हूं। हमने शुरुआत की पुरुष मिला प्रकृति से, हो गया लोचा, बिग बैंग थ्योरी, प्रॉब्लम, इम्बैलेंस। फिर हमने खोज की प्रकृति की, फिर हमने समझा ऐसे कुछ हेल्प नहीं होनी तो हम गए खुद के भीतर। Now we are on a journey to connect with our own self because we realize that is the only cure to stress. तो आया योग, युज, खुद से जुड़ना। अब कुछ समझ आया हमने कहां से शुरू की, हम वापस कहां आ गए? आपके एक ही प्रश्न का सवाल दूंगी मैं, वो है खुद से जुड़ना। या तो इसमें कहा पतंजलि जी ने कि ये जो खुद से जुड़ने की प्रक्रिया है इसमें बाधाएं क्या है, व्हाट आर द बाधास, ऑब्स्टिकल्स है ना, तभी तो आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। और वो बाधाओं को नाम दिया वृत्ति। तो जो मैं कुछ समय पहले कह रही थी ना कि वृत्ति क्या है, उन बाधाओं को, वृत्तिज आर नथिंग बट ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ कनेक्टिंग टू योरसेल्फ। और वो वृत्ति एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है ये। पिछले 10 साल से हार्वर्ड में एक रिसर्च चल रही है, उसके एक साइंस डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, कि दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन 5 के अलावा क्या साइकोलॉजी में और कोई भी
Is there any other scope of obstacle and they're not able to find it? अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में जितनी भी मॉडिफिकेशंस, वृत्तियां, इवन एट दिस टाइम आपको नींद आ रही है मेरा लेक्चर सुनते सुनते, निद्रा वृत्ति, यस, आपको अविद्या है, मतलब you have the wrong knowledge, विपर्य, wrong knowledge, आपको पेन देगा लाइफ में, वृत्ति, you have the right knowledge, अब मैं आपको right knowledge दे रही हूँ बट ये बहुत बड़ी वृत्ति पैदा कर रही है, बिकॉज हे भगवान, ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि मेरी हॉबीज नहीं हूं, मैं ऋषिका शाह सीए नहीं हूं, मैंने 3-3.5 साल मेहनत करके ये डिग्री ली और अब मैं ये भूल जाऊं कि मैं सीए हूं, मैंने इतने साल लगा दिए प्रैक्टिस बनाने में, मैं भूल जाऊं कि ये प्रैक्टिस मेरी है, क्या बकवास है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है फॉरेंसिक ऑडिट, मुझे समझना है मेरी प्रैक्टिस कैसे बढ़ानी है, ये बोर्ड में सब भूल जाओ, या नाउ राइट नॉलेज इज गिविंग यू वृत्तिज, इट हैज कॉज्ड स्ट्रेस। इफ यू सी आपके जीवन में जितने भी इश्यूज हैं एट प्रेजेंट, आप सिर्फ इन 5 डब्बों में डाल सकते हो, एंड वी डू दिस एज एन एक्सपेरिमेंट। The university, Harvard and the University of Manchester have been doing this experiment for 10 years. 10 साल से world के leading psychologists and philosophers are trying to find a 6th bracket and they cannot. It's been 10 years. Okay, so maybe if you're left with the time, we'll come back with an experiment. I would like you all to do it too. Now, obstacles, मैंने कहा ना बाधाएं हैं योगा में, तो ये 5 बताए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो 5 बताए, इसके बाद बताएं कि ये 5 जो है ना, ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट, मीनिंग पेनफुल भी हो सकते हैं, नॉन पेनफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब निद्रा पेनफुल भी हो सकती है। अब आप बोलोगे निद्रा कैसे पेनफुल हुई, आप एक रात खाली एक गंदी नींद सो के दिखाए, मतलब गंदी मीनिंग व्हेन आई यूज द वर्ड गंदी इज इफ यू स्लीप inadequately even for one night, you will suffer the biggest pain known to mankind. You know, हिटलर की concentration camps में स्लीप, यही जो वृत्ति है ना, इसको यूज किया जाता था, सोने नहीं देते थे, यू आर नॉट अलाउड टू स्लीप इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, एंड इंसान एक मेंटल स्थिति में पहुंच जाता था जहां वो खुद को मार देता था, या फिर आप उससे जो बोलो, वो एक 5 मिनट की स्लीप के लिए, 5 मिनट खाली एक आंख झपकने के लिए वो आपको सारे सीक्रेट्स बोल देगा। So sleep was used as a vritti, and it's so powerful. क्या I'm sure we all are of an age जहाँ हम सबके साथ ये तो हुआ ही होगा, अगर ये नहीं तो एक night party, because I think I know a very young person who's sitting right in front of me. You've pulled an all-nighter. I use a Gen Z term. You pulled an all-nighter, and then you try to go to office the next day to work. What happens to you? It's the most painful day. सर दुखेगा भयंकर रूप से, बॉस जो उस दिन जो तुम्हारे सामने आया ना उसको गुस्सा आएगा, बिकॉज कोई तुमसे बात भी करेगा तो तुमको गुस्सा आएगा, दैट इज वृत्ति, तो पेनफुल हो गई। और एक अच्छी नींद सो 8 घंटे की, एंड देन यू वेक अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समाधि। निद्रा को ही समाधि का दूसरा रूप कहा गया है, बिकॉज व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, कहाँ चले जाता है आपको कुछ होश रहता है, यू वेक अप, आपको पता नहीं क्या हुआ, बट यू जस्ट फील वेरी नाइस। समाधि भी ऐसी ही कुछ होती है, वहां आप एक्सपीरियंस को आप जाहिर नहीं कर सकते कि क्या हुआ, बट ऐसा तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस दैट्स द ओनली एक्सपीरियंस दैट वी हैव। सो इट कैन बी क्लिष्ट और अक्लिष्ट। नाउ बिकॉज आई टीच कॉलेज स्टूडेंट्स, यू नो, उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है मेरे पास, ये क्यों क्लिष्ट और अक्लिष्ट लिखा, हैप्पी क्यों नहीं लिखा, यू नो, ये पेनफुल और हैप्पी होना चाहिए, ये पेनफुल और नॉन पेनफुल क्यों लिखा। You know, Gautam Buddha said, what is happiness? Gautam Buddha ने happiness को पता है define कैसे किया? It is a temporary relief between 2 miserable conditions. वापस से सेमिनार खत्म, मेरी लाइफ तो है ही miserable. Gautam Buddha himself said कि स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, लाइफ हैप्पीनेस क्या है, 2 बहुत मिजरेबल सिचुएशन आई, उसके बीच में मुझे टेम्परेरी राहत मिली, रिलीफ, वो हैप्पीनेस है। इफ यू रियलाइज हम सब एक 99 की दौड़ में हैं। डू यू नो द मुहावरा 99 की दौड़, हम सब 99 की दौड़ में हैं, मतलब खुशी भी ना हमने आंकड़ों में बांधी, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं बहुत खुश हो सकती हूँ ना, तो भी मुझे वो 99 ही लगेगा, और फिर मैं उसको 100 करने के चक्कर में वापस 1 पे आ जाऊंगी, बिकॉज मेरा मन मुझे कहता है कि वो 1 गायब है तो मुझे वापस 1 में आना है। या सो
everything that you think of is either painful या फिर पेन नहीं हो रहा है तो मैं उसको खुशी का नाम दे देती हूँ, but there is no such thing as true happiness. Does it make any sense whatsoever? ये मैं आज है ना, the good thing is मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं खुद बोल रही हूँ. तो अगर आपको बिलीफ नहीं भी होता तो आप जाके बुद्ध से आर्ग्यू कर सकते हैं. I don't. मुझे स्ट्रेस, you know, so yoga taught me this. And आगे के जब मैं बताऊंगी कि how to overcome yoga taught me this to give up the duty. मतलब आप अपनी ड्यूटी करो, to give up the ownership. You do the duty, आप ओनरशिप नहीं, मेरी ओनरशिप है ही नहीं. मैंने पहली स्लाइड डाली एक्नॉलेजमेंट. मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये इन्होंने मुझे सिखाया है, अगर सही गलत इनसे जाके भिड़ो, मेरा कुछ लेना देना नहीं. तो मेरे पास स्ट्रेस ही नहीं है. आई एम प्रेजेंटिंग वट एवर आई एम विद अटमोस्ट ईज एंड कॉन्फिडेंस बिकॉज आई हैव नॉट सेड इट ओनली. मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, जो कुछ भी कर रहा है कोई और किया, तो उससे जाके भिड़ो. सो दैट इज ऑब्स्टिकल इन योगा विच कम्स इन फॉर्म ऑफ वृत्तिस. The next I want you to do is a little exercise. Yeah. Can you all get a pen and paper? Everyone has a pen and paper. Can you please get some pen and paper for them at the latecomers? I think have no pen and paper. Yeah. आपके जीवन में ना आप जो कुछ भी जा रहे, whatever you going through, मुझे बैलेंस शीट देखनी है. I want to see how good you all are as CAs. मुझे बैलेंस शीट ड्रॉ करके दिखाइए. एक हेड लिखिए क्लिष्ट, पेनफुल, लाइबिलिटी साइड पे, और एसेट साइड पे लिखिए अक्लिष्ट, नॉन पेनफुल. एक क्लिष्ट लिखिए, एक अक्लिष्ट. एसेट साइड पे आएगा अक्लिष्ट, नॉन पेनफुल. लाइबिलिटी साइड पे आएगा क्लिष्ट, पेनफुल. मुझे पुरानी वाली बैलेंस शीट बनाओगी तो भी चलेगा, शेड्यूल 6 नहीं नको है. इतना स्ट्रेस में मत आ जाना उसके लिए, नहीं तो पता चला एडेड स्ट्रेस इन स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप. जो बैलेंस शीट पुरानी वाली चलेगी मुझे, लेफ्ट राइट. एक एसेट और एक लाइबिलिटी. और जीवन में जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अच्छा बुरा, आप उसको उस बैलेंस शीट में भरते जाओ. वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, भरिए. इट इज योर एक्सरसाइज टाइम. यू नो योगा इज एक्सपीरियंस. इट इज नॉट कि मैं यहाँ पे लेक्चर दूं और आप समझ जाओगे. आपको थोड़ा महसूस करना पड़ेगा. योगा इज ऑल एक्सपीरियंस. यार योगा अनफॉर्चुनेटली इज वन साइंस जो यू नो सी के जैसा नहीं कि मैं यू नो टीचर जेके शाह क्लासेस, सो आई एम यूज्ड टू टीचिंग स्टूडेंट्स एंड यू नो ensuring that they memorize. But unfortunately yoga mein you can't do that. You have to experience it for you to really learn something. तो लिखिए asset, liability. बहुत कुछ होगा. मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया. एसेट, खुशी. मुझे एक नया क्लाइंट मिल गया, खुशी. लिखिए व्हाट ऑल. इस बार ईयर एंड होने आ रहा है मार्च, मेरी प्रीवियस ईयर से इस बार की बैलेंस शीट अच्छी, खुशी. अरे आप सीरियस हैं, आपकी लाइफ में कितना कुछ होगा खुश होने के लिए. पहले खुशी का ढांचा भरिए. एसेट. मुझे भी आप लाइबिलिटीज वाली जो साइड होती है वो बहुत छोटी होती है. मुझे ना एसेट वाली छोटी लगती है. ये ओवर लेवरेज बैलेंस शीट लग रही है मुझे. थोड़ी सी बैलेंस है, बस एक ही है. इसमें क्या एक्सपीरियंस है? That's it. This is all that you're experiencing in life. Very close to you. You're very close to achieving samadhi. No, but you should actually do this. You know, I'll tell you why. The next slide that we progress, आप जितने elements करेंगे ना, उतना आपको ये समझने में आसानी होगी. I think I like this a lot. This is a way to.
अब आ रही है? अब आ रही है? Oh my God, this asset side is filled. आपने have you been able to fulfill your balance sheet? अच्छी खासी भरी आप अच्छी चलती हुई एंटिटी है कि ढांचा डमी कंपनीज हो आप सब कोका कंपनीज है या कि हम एक्चुअली वो प्री फंक्शनल कंपनीज है ये तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं दे आर फंक्शनिंग कंपनीज राइट तो उसमें ट्रांजैक्शंस काफी कुछ होते हैं तो दो ही ट्रांजैक्शंस हैं ये तो तुरंत स्क्रूटिनी में फंस जाओगे स्क्रूटिनी How can you have only 2 or 3 transactions? It needs to be a fully functioning company. Wow. Okay, now that you have finished this, okay, I would want you all to just put it aside for some time and hear what I'm trying to say. So, going back again to the Bhagavad Gita, where in chapter 2, shloka 47, Bhagavan Krishna said, Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phale heturvur ma te sangostva karmani. Meaning he said, whatever your karmas are, you do it without any expectation. You know, it became a very famous Bollywood dialogue, कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मुझे फल की that's what he said. Now look at your asset and liability and tell me how many of those actions that are causing stress or happiness are actually done without any expectation of fruit. देखो देखो तो यू नो ये जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे कहते हैं लेकिन फाइनेंशियल डैमेज का क्या आप मुझे बोल रहे हो एक्सपेक्टेशन मत करो क्लाइंट से फीस मत लो मैंने ये कहा इनफैक्ट सत्वा मेक्स द हेल्दीएस्ट बटवा अगर आप सात्विक हो ना तो आपको अपने बटुआ you understand what is बटुआ I hope that the younger generation here I don't know whether to classify myself as younger anymore because I am somewhere in midlife suffering from midlife crisis ना मैं यहाँ की हूँ ना मैं वहाँ की तो कुछ terminology मेरे पास बहुत पुराने लोगों की आ जाती है बटुआ meaning wallet yeah purse wallet yeah now सत्वा makes a very healthy बटुआ तो ये मत समझना आप कि अगर मैंने ये सब करना शुरू कर दिया तो फीस का क्या भाई वो बाद में come to it I'm not saying that don't charge fees श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि फीस मत चार्ज करो उन्होंने तो इनफैक्ट हमें एक बाइबल दी I use the word Bible because it's a commonly accepted term for anything that works as a guiding light उन्होंने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा कर्मण्येवाधिकारस्ते का ये मतलब नहीं है कि तुम कर्म छोड़ दो फीस मत लो क्लाइंट से उन्होंने बोला कर्म तो करना पड़ेगा टू पॉइंट वेयर ही मेड श्योर दैट अर्जुन गोज एंड किल्स हिज ओन पीपल इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा ऑफ कर्म कि कर्म करो धर्म को मन में रखते हुए वही तुम्हारा कर्म योग है द रीजन आई आस्क्ड यू टू बाइफिकेट क्या निष्काम और क्या सकाम निष्काम मीनिंग the कर्म that you do without any expectation in return and you realize if you are a parent if anyone here is a parent आप जो अपने बच्चे के लिए करते हैं वो निष्काम होता है और इसीलिए अगर आपका बच्चा खुश है तो आपको एसेट सही मिला पर वहां से भी क्या आ गई निष्काम करते करते सकाम कर्म हो गया कि मेरा बच्चा खुश हो ये एक डिजायर पैदा हुई राइट तो वो सकाम हो गया You are not expecting while you are giving to the child, but you are expecting the child to be happy with the sakam karma. Cause of the greatest worry of some of
The greatest people in this world is nothing but the happiness of their children. Am I right or am I right? तो अगर बच्चा खुश तो हम खुश, अगर बच्चा ना खुश तो हम बहुत खुश. And that depression is unmatchable stress. Yeah. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म के अधिकार से, मतलब तुम यदि अपना कर्म कर रही हो, you are doing the right action. You need not be bothered about the outcome of that action. पतंजलि जी ने इसे क्रिया योग में ले लिया, इसे कहा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, मतलब कहा तप, फुल कोर्स. कभी ये नहीं कहा कि एक्शन मत करो, तप तप मतलब खुद को चलाना, तप करो, इतनी मेहनत करो और उस मेहनत से अपना कर्म करो. स्वाध्याय ने जो कर्म किया उसको पहले बैठ के रिफ्लेक्ट करो. ये रिफ्लेक्ट मैंने जो किया, देखो स्वाध्याय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. हमारा मन जो ये चित्त जो आप कह रहे थे ना, मन, ये हमसे कभी झूठ नहीं करता, कभी झूठ नहीं करता. If you have done something wrong, your mind, if you connect to your mind, will always tell you नहीं करना. आप बाहर की दुनिया को उल्टा घुमा सकते हो, हम घुमाने को स्पेशलिस्ट हम किए हैं, पर अगर आप अपने मन से, अंतःकरण से एक बार कनेक्ट होकर पूछोगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा यस नो. ये भी तो होता ही नहीं मन के पास, यस और नहीं करता है. So it says yes or no. And that is what it means that अगर मैं स्वाध्याय करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मैंने तप में कोई कभी किया नहीं. स्वाध्याय का मतलब क्या मेरे कर्म करने में है, फॉर शॉर्ट क्या मैं इससे ज्यादा could I give it my best or could I not give it my best. And once you have done Swadhyaya, you consider that I have given it my best. Ishwar Pranidhan, surrender to the Almighty. Like I said, I did tap because Purvi told me there was a change in the name of the seminar. I had to do a lot of tap, change the entire slideshow at 11th hour. Then before I went to sleep at night, 11 o'clock, I did Swadhyaya. Have I given it my best? I have. The time that I had, with whatever I had, मैंने best possible information collect करने की कोशिश की. And now what I am doing is Ishwar Pranidhan. I have surrendered. जैसा हो ठीक हो, ना हो तो भी ठीक. You know, एक बहुत बढ़िया दोहा है, यदि मेरी मर्जी का हुआ तो भी सही, ना हुआ तो भी सही, क्योंकि यदि मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो उसकी मर्जी का हुआ और वो भी सही. If it is not what is your expectation, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है अटैचमेंट. कमिंग बैक टू श्री कृष्ण, हमने अटैच कर दिया हमारे आपको क्या कि मैंने इतना एफर्ट डाला. You know this happens while I was teaching at JK class, I realized how attachment creeps into your life. You know, as teachers, we attach ourselves to the success of our students. बहुत ज़्यादा. You know, अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स अगर मेरिट पे आते थे, they were AIR of 9th बताना, I would be so happy, I would be over the moon. But यदि मेरा एक बच्चा भी मुझे फोन करके बोलता था ना मैम मैं ऑडिट में फेल हो गया, I would be shattered, you know, because the outcome was that he too fail हो गया. You know, I have done the best that I could. So you know, the instinct would kick in because my expectation, I was so attached to the outcome. मुझे ये लगने लगा कि पास होना ही इसके लिए ठीक है. You know, and then it so happened that one of the days, one of my students who was not clearing, you know how हम सबको पता है ये में after every May comes November and November is followed by May, तो उसके जीवन में ये May November का चक्कर पहिया चलता रहा. Then after 2 years, he left CA. More क्या है CA में reason? You know, you see a lot of dropouts, right? Because it's CA is not mental strength. And when he dropped out, he started off something of his own, a startup. And that startup today has grown to be such a big startup. It gives me a sense of immense pride and joy. Now when I watch him, and I feel कि मैं बेकार में ये सोच रही थी कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, कि उसके तो बहुत अच्छे के लिए हुआ. If he would not have failed, वो कभी नहीं छोड़ता. वो अपने बिग फोर की नौकरी में ही वो उसको दूसरा लाइफ का बोलता मुझे बस बिग फोर रोज वाला करता था 108 बिग फोर. That got absolutely out of the way. And he started something of his own, became so good at it.
या सो जो हुआ एक्चुअली में तो उसके अच्छे के लिए ही हुआ, बट क्योंकि मैंने उस आउटकम को मेरे दिमाग में सोचने तो वापस से करता कौन, स्ट्रेस का कॉज कौन थी, मैं खुद। मुझे किसी ने थोड़ी बोला कि दुखी होगी वो फेल हो गया, मैं खुद ही दुखी हो रही थी। yes or no? So this actually is one of the greatest things. Now to see, अब देखो और उसमें से स्ट्राइक आउट करो, सीरियस हो ना, उसमें से देखो कौन कौन सी चीजें जो आपने लिखी उसमें क्या क्या है जो सकाम है, मतलब एक्शन विद एक्सपेक्टेशन, उसको स्ट्राइक आउट कीजिए कीजिए। एक्टिविटी क्या क्या है उसमें, आपने बैलेंस शीट नहीं कर होगा कम ही कंप्लीट सब निकल गया, प्लीज क्या सब कुछ निकल गया, अरे होगा कंपनी नहीं बनना, नेति नथिंग लेस बनना है कि कुछ भी नहीं हो। अभी मैंने कहा ना नेति ब्रह्मांड क्या है, शून्य, नथिंग, ये भी बनना है। इल्ले तो yeah, when you have nothing in you, remember yoga is not IPL, yoga is not IPL, yoga is like test match। अगर आप ये सोचो कि ये मैं एक दिन प्रैक्टिस करूंगा या 2 दिन और मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। इट इज अ प्रैक्टिस दैट गोज इवन बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। आपको जन्मों जन्मांतर तक यही ध्यान रखना है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ बनना ही नहीं है। हमें स्कूल की जो हमारा जो ट्रेनिंग है वो ये सिखाती है कि तुम्हें कुछ बनना है जीवन में। माता पिता भी कहते हैं कुछ बनना है जीवन में, हर किसी को हर कोई कुछ बन जा जीवन में, कुछ तो बन जा जीवन में, या एंड हम उस कुछ बनने की खोज में हम ये भूल जाते हैं कि हम है कौन, या वो कुछ हम क्यों बन रहे हैं, तो ये सिर्फ माया ही है ना, कुछ हम बन रहे हैं उससे इतना बड़ा स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में। यस और नो? सो इट सेड कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते सर्वस्वकर्मणि, डू नॉट अटैच योरसेल्फ टू द आउटकम। या जो होना है वो होगा, आपका काम है तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, लेट इट गो। या डज इट मेक एनी सेंस? नाउ यू विल आस्क मी, इट्स वेरी इजी टू से, बोलो कोई है तो आर्ग्यू करो, आई लाइक पीपल हु आर्ग्यू। नेति नेति हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ओके टेल मी, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में स्ट्रेस आता कहां से है? काम नहीं, काम क्यों छूटेगा, आप तो अपना तप कर रहे हो ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि काम करना छोड़ो, मैंने कहा ही नहीं, मैंने अभी क्या कहा, तप करो, आप क्लाइंट को पूर्ण रूप से सर्विस दो, फिर स्ट्रेस कहाँ है? क्या सामने वाला सात्विक नहीं हो, आपको टेंशन नहीं करनी, मैंने क्या बोला, इश्यू पर निभा। इज योर कॉन्शियस क्लियर और नॉट, इज योर कॉन्शियस क्लियर और नॉट, दैट्स इट, you have done your best। I tell you the biggest issue is हमें भूल जाते हैं, हमें अवेयरनेस आ गई कि सामने वाला सात्विक नहीं है, तो आपको ऐसे इंसान के सहयोग में रहना क्यों रहना है? जब if you know that somebody is pulling you down, why would you want to be with that person? आपको अपने आप स्ट्रेस पहुंच रहे हो, यही बात की हथौड़ा लेके उसके पांव पे मार दिया। जो इंसान सात्विक नहीं है वो आपकी ग्रोथ एक सात्विक तरीके से होने देगा क्या? But I don't say that the person is bad, because हर इंसान की जो चेतना का स्तर होता है ना, वहां भी उसमें परफेक्ट मैच मिल जाता है। So maybe वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा, बट उसको दुनिया में ऐसा कोई और तो सीए मिल जाएगा जो उसकी एनर्जी से मैच कर रहा है, और आपको भी कोई ऐसा क्लाइंट जरूर मिलेगा जो आपकी एनर्जी से मैच। maybe answer your question. The problem is we involve ourselves in serving people who don't give us happiness so much, हम इतना खुद को उससे बांध लेते हैं कि हम आसपास देख ही नहीं पाते। एक बुरा क्लाइंट, you know, because I was in practice for quite some time, I can say this, एक बुरा क्लाइंट हमारी पूरी जिंदगी की खुशी निचोड़ सकता है। Yes or no? Yes. And imagine हम फिर भी उसको रखने की कोशिश करते हैं, मुझे बस किसी भी तरीके से ये रिटेन हो जाए, वो डर ही नहीं रहा है कोई, बट हमें फिर भी लगता है यार इज्जत का सवाल है यार,
कुछ भी करके रीडिंग हो जाए, सारी इज जस्ट पैसा। अरे पैसा तो आप उसको छोड़ो, और देगा। Exactly. So what you are lacking is the self-belief which comes from स्वाध्याय. स्वाध्याय और कुछ नहीं करता है, स्वाध्याय आपको सेल्फ बिलीफ देता है कि अगर मैं ये काम ढंग से कर रहा हूँ, इसके लिए कर सकता हूँ, किसी और के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ? There is enough fish in the world for everyone to eat. It's a very old proverb. दुनिया में है ना, सबके लिए बहुत सारा है. हमें क्या लगता है कि दुनिया सीमित है और इसी पाए जैसे ना हम सबको खींच के छीना झपटी योगा का मतलब ही है छोड़ देना, छीना झपटी नहीं करना. And you know when you do that, beautifully work starts flowing. Why? Because you are stress free, right? आप stress free हो गए. जब आप छीना झपटी में हो तो क्या हो रहा है? दुनिया में दौड़, भाग रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो. But when you stop, when you pause, मैंने क्या कहा था? थम जाने को भी योग कहा. When you pause, you become shant, you become quiet, you become so sattvic. And ये चीज ऐसी है कि मेरे बोलने से कभी नहीं होगा. जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको लगेगा ये बकवास. मुझे भी लगता है. No, I have been through this cycle. The reason I say it with so much confidence is I have let go of a lot of people. I have let go of a lot of people with the confidence that if I am doing what I am doing is right, the right people automatically come. And this, ये ना सिर्फ सीरियस है इसलिए हम हमेशा क्लाइंट की ओर से सोचते हैं, पर ये जीवन में हर एस्पेक्ट में आता है. Yes. तो तभी तो बोला ना योग चित्तवृत्ति निरोध. पहले ही क्या बोला पतंजलि जी ने? पहले तो दिमाग को बैलेंस की अवस्था में लाओ. समत्वम योग उच्यते. कृष्ण भगवान ने बोला समत्वम, इक्वालिटी बन जाओ, स्टेट दिमाग को हमेशा बैलेंस में रखो, तब जाके तुम ये सब कर पाओगे. क्योंकि बैलेंस कहाँ है? बाहर से तो मैंने शुरुआत ही बैलेंस से की थी सर. I think you came in a little late, but the seminar started with imbalance. We were all balanced people. हम eye contact with the universe that made us imbalanced. So आपको क्या करना है? आपको वापस से स्टेट ऑफ बैलेंस पे जाना है. किसी और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, खुद को बैलेंस. Is that okay? I'll go to the next slide. Yeah. Now I have given an analogy here, which basically is जिसमें कहा गया है कि जो स्ट्रेस है ना, it is like a suspense account. हाँ, क्या आपको स्ट्रेस दिखता है? दिखता है क्या स्ट्रेस? कभी नहीं दिखेगा. सस्पेंस अकाउंट, मुझे पता ही नहीं कहां से आया. सस्पेंस भी तो ऐसा ही होता है, कहां से आ गया ये अमाउंट, अब कहीं जा ही नहीं रहा है. So it enters your balance sheet, it refuses to leave your balance sheet. That is stress in your life. Okay? And as long as, जब तक ये प्रकृति है ना, स्ट्रेस रहेगा. जब तक वो त्रिगुणा सत्व रजस तमस रहेंगे, स्ट्रेस भी रहेगा. मैंने ये थोड़ी कहा कि क्लाइंट बदल जाएगा. मैंने कहा कि क्लाइंट सब तो हो जाएगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. आप खुद बदल जाओगे the minute your approach towards a stressful situation changes. Yeah. So इरेजर लेके पहले किसको मिटाना है? खुद को. पहले खुद को, जो कुछ आपने सोचा है पहले उसको मिटाना है. And then you write what is the right thing on that canvas. Okay. Now I come to balancing you. How will I balance you? मैंने कहा था कि ऑब्स्टिकल ढूंढ लिया. ऑब्स्टिकल क्या था? जल्दी बताइए तो मुझे पता चलेगा, कोई सो नहीं रहा. ऑब्स्टिकल क्या था? The five वृत्तिज. The five वृत्तिज. वाह, ये सीरियस है, ये लोग रट्टा भाषा मारते हैं. Five वृत्तिज were the obstacles. या और ये ऑब्स्टिकल क्रिएट किसने किया? मैं स्वयं. मैंने लिखे ना अपने ऑब्स्टिकल्स, लिखे तो सही, इसलिए मैंने लिखवाया था. वो क्यों आया? बिकॉज मेरा मन क्या कर रहा था? सकाम कर्म. आई एम स्टिल इन्वॉल्व इन एक्शन. हम सब यहाँ हैं, मतलब हम सब प्रैक्टिस में हम कर्म कर रहे हैं. हम किसी ने अभी तक संन्यास नहीं लिया है. आई एम अज्यूमिंग. हाँ, हम सब काम कर रहे हैं, तो हम सकाम कर्म कर रहे हैं. दैट वाज द ऑब्स्टिकल. अब हाउ डू आई गो अगेंस्ट? नाउ आई कम टू द सॉल्यूशन. मैंने अभी तक जितनी बात की ना, ये सिर्फ था जो प्रॉब्लम है. Now yoga gives us the tool.
आपको एक लकड़ी दी मैंने, ये प्रॉब्लम थी, अब मैं आपको एक सॉ दे रही हूँ, उसको कैसे फाइन करना है, दिस सॉ इज योगा. ओके, नाउ योगा गिव्स अस लवली, बहुत सारे दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्तर यू आर इन योर लाइफ, आप किस स्तर पर हो, आप किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो, आप इनमें से कुछ भी एक यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर लिखा है अभ्यास, वैराग्य, चित्त प्रसादम, क्रिया योग, आहार विहार आचार विचार, नेति नेति which I have spoken about, and यम नियम. नाउ ये सब आप एक साथ में नहीं यूज कर सकते हो. कोई भी एक साथ लोगे तो स्ट्रेस चला जाएगा. Yeah, you can't do everything all at once, but you have to pick just one out of all of this, depending on what suits you and your level of consciousness. Okay, the first one is called as अभ्यास वैराग्य. ये पतंजलि जी का दिया हुआ पहला स्टेप था, अभ्यास वैराग्य. Anyone who knows what is the meaning of अभ्यास? Abhyas means practice. Yeah, practice or to keep repeating something is abhyas. Yeah, like I said कि सितार का मैं अभ्यास करती हूँ, मतलब मैं रोज बजाती हूँ, मैं आता नहीं है मुझे, मैं रोज बजाती हूँ. I practice. Okay, what is vairagya according to you? I have got the most common answer, detachment, and I have got a food for the next 15 minutes. Okay, detachment. हमें लगता है वैराग्य क्या है? डिटैचमेंट, त्याग. हमें डिटैचमेंट का हिंदी वर्ड क्या है? त्याग. त्याग ही तो है. अरे त्याग ही तो डिटैचमेंट है. मैंने त्याग किया तो मैं डिटैच हुआ, ऐसा है क्या? देन व्हाट इज डिटैचमेंट? जो नो बोल रहा है वही आंसर देगा. Detachment means not to be happy or unhappy at any situation or event. वेरी गुड. you are talking like I said you're very close to samadhi. मैंने आपसे कहा ये बात. Some, yes. Are you anyone here who is a Jain? I love the Jain philosophy because उनका basis है सम्यक होना, which is nothing but what Krishna Bhagavan also said, which was yogastam kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya samatvam yoga uchyate. He said samatvam, सम्यक होना ही वैराग्य है. Now you wonder ये क्या बड़बड़ कर रही है यार, संस्कृत में इतना कुछ बोल दिया और कुछ समझ में नहीं आया. Samatvam yoga uchyate is the state of being equanimous. You don't jump in happiness and you don't fall in sorrow. हम इसका exact opposite करते हैं actually, you know this. अगर हमारे साथ जिंदगी में कुछ भी अच्छा होगा ना, हम इतना उसका गुणगान करते हैं, we tell the world हमारे साथ ये अच्छा हो गया, वाह वाह वाह. सोशल मीडिया, PR, Instagram, Facebook, 100 channels where we will say it. और कुछ भी गलत होगा ना, we fall. And ये कहा गया, there was a very great saint by the name of Sri Aurobindo. I don't know if anyone's ever visited his ashram in Pondicherry. I love his way. He used to follow the Vedanta school of philosophy. वो कहते थे कि आप खुशी में जितना ऊपर जाओगे ना, उतना ही दुख में आप नीचे आओगे. तो उनके आश्रम में एक रूल था कि जो कोई भी आके उन्हें खुशखबरी, you know how you go to gurus when something really nice happens. I mean, if you ever had a guru in life, you will know what I mean. आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है ना, तब पहले अपने गुरु के साथ शेयर कर ले. जैसे मेरे गुरु यहाँ पर 3 बैठे हैं, तो my first thing was that I will share whatever I do with them. You know, तो मैं बताऊंगी यार. तो वहां पे ना औरबिंदो आश्रम में लोग आते थे मिठाई के बड़े बड़े डब्बे लेके, you know, because Aurobindo ji was a very known spiritual, he was a cult head at that time. I don't like using the word cult in yoga, but he actually had a very big following, and people were very rich. जो उनके followers भी थे वो बहुत अमीर थे, very rich businessmen. और वो उनके लिए जब कुछ भी अच्छा होता था ना, इतना सारा सामान, donation, you think of it, they would go berserk. So you know what he would say? He would say, the rule is, he would note down, जब तेरे साथ जीवन में कुछ गलत होगा ना,
तभी भी तुझे इतना ही सामान ला के देना पड़ेगा। एंड द पर्सन वुड बी लाइक व्हाट, याद रखना मैं उतना ही एक्सेप्ट करूंगा अभी जितना you will be prepared to give away at the time of distress. And we don't understand this vairagya. You know, someone told me the other day, मैंने चाय का वैराग्य किया है। आई एम अ चाय पर्सन, ओके, तो मुझे ना ये बहुत टची टॉपिक लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि चाय का वैराग्य जिंदगी में नहीं हो सकता। अब चाय से वैराग्य, इफ यू आर अ पर्सन हु ड्रिंक्स चाय, यू विल अंडरस्टैंड माय इमोशंस, ओके। अब वितृष्णा, द वर्ड दैट वितृष्णस्य वैराग्य बोला, वितृष्णस्य मीनिंग तृष्णा ही, जब प्यास ही नहीं बचे ना किसी चीज की, वो होता है वैराग्य। ये नहीं कि भाई मुझे प्यास तो बहुत है चाय की, बस मैं उनकी चाय 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 लाइक कौवा का आई डू चा 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 चा, बट just because I have been told that chai is not good for you, I have suppressed, and suppression is not vairagya. Understand what is Abhyas Vairagya, because it's a very amazing tool. As CAs, all of you can use this. I love it. I started my yoga journey with Abhyas Vairagya. Yeah. Vairagya क्या है? You know, I give you this example. जब हम, like, you know, when I was 5 years old, it's a personal story. I was very fond of a candy doll जो मेरे नाना जी ने मेरे लिए लाई थी उस टाइम पे ताइवान से। वो बहुत ही अगली लुकिंग डॉल थी, बट वो बिकॉज मेरी फेवरेट थी, कोई उसको टच भी करता था ना तो मैं बहुत फूट फूट के रोती थी। No one was even allowed to touch it. Till the time I was 10 years old, that candy doll was my best companion and was my greatest asset. मुझे लगता था जीवन में एक कैंडी डॉल के अलावा कुछ नहीं है। फिर मेरे एक मामा हैं जो he happened to move to US at around the same time. तो उन्होंने मेरा मेनिया देखा था of candy dolls, okay, of dolls in general. When I was 23, he came back from USA for his own marriage. And his first thing was, listen, I got you a very pretty doll. And I said, what a fool. I don't want this anymore. So, but you used to love dolls. I have grown up. I was all of 8, 9 when you left me. I have grown up. I don't like dolls anymore. I like bags now. You should have got me a bag. What is this rubbish? Does this mean कि मैंने डॉल का त्याग किया, वैराग्य हुआ मुझे? क्या मैंने त्याग किया डॉल का? अरे मैं I grew up, so that's called त्याग किया या वैराग्य? क्या हुआ इसमें से? कुछ भी नहीं हुआ. I just grew up. अरे मैंने वैराग्य थोड़ी किया, अरे मेरी चेतना बढ़ गई, मुझे डॉल नहीं चाहिए, मुझे बैग चाहिए. Maybe when I am 50, or if I happen to live to that age, we never say this in yoga, but maybe when I'm in 50, somewhere around 50, and I don't like bags anymore. Right now I'm a crazy bag holder. Yeah, maybe at that time I don't like bags. Can someone say कि इसने वैराग्य किया? No. मेरे को उस चीज की जरूरत नहीं है ना, मैं थोड़ी ना 23 साल की लड़की डॉल लेके घूमूंगी, मुझे नहीं चाहिए वो अभी. So that is not vairagya. I want you to understand what is vairagya. Vairagya meaning I don't feel the need despite it having its use in my life. मेरे को अभी भी ये पता है वैराग्य कब होता? अगर मैं अभी भी 8 साल की होती और अगर अभी भी मैं उस डॉल से खेलने की उम्र में होती और फिर मैं कहती कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए और मन खुश रख के कहती नहीं चाहिए, तो वो वैराग्य होता. You understand what is vairagya? Yeah. So just to grow up is not vairagya. Vairagya means मुझे तृष्णा नहीं बची उस चीज की, प्यास नहीं लग रही मुझे, तो मुझे अब वो चीज नहीं चाहिए. Yeah. Is that clear everyone? So अभ्यास वैराग्य क्यों कहा गया? किसका अभ्यास करना है? This is the most common thing. अभ्यास किसका करना है? Detachment का. And detachment from what? From the material objects? Detachment from your thoughts. It has nothing to do with an outside bag or a doll. It has everything to do with your own thoughts. You know, ये कहा गया जब आप दो thoughts, ये scientifically proven है now that when you think two thoughts, yeah, दोनों thought के बीच में एक gap आता है. एक gap होता है जिसको हम कहते हैं समाधि. होता है, हर किसी के साथ होता है.
The problem is that our attachments are so strong that वो जो thoughts का जो चक्कर है ना, वो जो पहिया है, चक्का इतना तेज घूमता है कि वो pause एकदम छोटा सा रह जाता है. Attachment मतलब the opposite of वैराग्य, वो जो thoughts के बीच में जो space है ना, जो नेति जो है, उसको finish कर देता है. So क्या सिखाया? अभ्यास किसका करना है? वो जो दो थॉट्स के बीच में जो एक गैप आए, उसी का अभ्यास इज अभ्यास वैराग्य. डिटैचमेंट टू योर थॉट्स. नाउ यू विल टेल मी, हाउ कैन यू डिटैच फ्रॉम योर थॉट्स? पूछो. अरे मैं ही क्यों पूछ रही हूँ तुम्हारे भी, तुम कुछ पूछो. आई हैव गिवन द आंसर ऑलरेडी प्रीवियसली. व्हाट इज डिटैचमेंट टू थॉट्स? लाइक आई सेड, no, like I said, you give up the ownership. You know, Jainism में एक बहुत अच्छा concept है पुद्गल. You know पुद्गल? Yeah? पुद्गल कहते हैं sticky matter, जो आपसे आके सिर्फ तब चिपकेगा जब आप उस exactly. मैंने ownership नहीं ली. Like I said, मैंने ownership ही नहीं ली इस सेमिनार की. मुझे क्या stress? Yeah? So when you do everything, every action without taking the ownership, वो पुद्गल हटा देगा आपकी जिंदगी में से. So अभ्यास का अपने आप वैराग्य का अपने आप अभ्यास होता चला जाएगा. And you know, when you keep practicing this, the beauty of this is, you know, it's like आपको पता है एक न्यूटन का लॉ है, when an object keeps moving unless and until an external force is applied to it, it will keep moving. मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूटन बोल के गए, उसके पहले कनोडा ऋषि ने बोला. ओके, नाउ योर थॉट्स आर आल्सो लाइक दिस. जब तक वो घूमते जा रहे घूमते, उसी स्पीड में घूमते रहेगा जब तक आपने अभ्यास नहीं किया उसको रोकने का. न्यूटन्स लॉ. या एंड जैसे ही मैंने वो कर दिया, वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा. अब वो स्लो स्पीड में घूमता रहेगा. कब तक? जब तक या तो मैंने उसको वापस से फास्ट धक्का देके फास्ट नहीं किया, या फिर धक्का देके और स्लो नहीं कर दिया. You understand? So the logic is that keep moving at that speed. आपके ऊपर है कि आपको अपने thoughts की speed, remote control है ना, वो आप ही के हाथ में है. So how much you want to lower your stress is up to you. किसी को बहुत अच्छा लगता है stress. They work very well under stress. No, there are actually some people they only work under stress. मेरे खुद का एक टीम मेंबर है, मैं जब तक उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हिलेगा भी नहीं, नॉट मूव. मतलब यू नो सीएस में हमारे में तो स्पेशली होता है कि यू नो ऑडिट पे जाते हैं, जब तक फाइनलाइजेशन की डेट नहीं आए ना, तब तक नोबडी विल हसल. एंड वी हैव बिकम सच अ हसल कल्चर. हसल मतलब लास्ट मिनट पे जाके मैं ओवरनाइट काम करूंगा एकदम रात भर, और फिर मैं घर जाके बोलूंगा मेरे को आज ऑफिस में बहुत काम है. क्यों हुआ ये? बिकॉज मैंने प्री प्लान नहीं किया, मैंने मेरे थॉट्स को पहले स्लो डाउन नहीं किया, तो मुझे बहुत फास्ट करना पड़ता है. You know, we were having this discussion when the seminar started. I was talking to Purvi and I said that if we were to plan our own affairs and our own life with the same care that we plan हमारे clients के affairs को हम plan करते हैं ना, कितना beautifully, you know, आप एक CA की जोड़ेंगे भी बैलेंस शीट में ना, आपका forensic accounting है ना नेक्स्ट सेमिनार, आपको देखेंगे. अगर एक सीए ने प्लान किया ना झोल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैच दैट झोल. व्हाई? वी मेटिकुलसली प्लान, बट हम एकाग्रचित्त हैं, हम फोकस्ड हैं, बट हमारा एक्शन पूरा गलत है. अब इसी एकाग्रचित्त को इफ यू वांट टू पुट इट टू योर ओन लाइफ एंड माइंड, तो क्या मजे ही मजे है. Then there is no need for me to come here and take a stress management seminar. You all can do it the next time. Absolutely. The next thing was Chitta Prasadam. Now, because we are all CAs here, I want you to write down a formula. लिखो. Formula. हमें formula से चीजें ज्यादा better समझ में आती है. Chitta Prasadam is nothing but amplified joy. It is nothing but amplified joy. मतलब joy, बहुत ज्यादा joy. Amplified joy plus compassion. करुणा, माइनस एक ब्रैकेट खोलिए, बॉडमास वाला ब्रैकेट खोलिए, और उसमें लिखिए हेट्रेड प्लस जेलसी एंड ब्रैकेट क्लोज. चित्त प्रसादम इज एम्प्लीफाइड जॉय प्लस कंपैशन माइनस हेट्रेड प्लस जेलसी.
So hatred plus jealousy is in a bracket, meaning you have to minus both the elements. Okay? ये चित्त प्रसादम है ना, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। और है ना, ये पूरा चित्त प्रसादम मैं सिर्फ बॉलीवुड मूवीज के एनालॉजी दे के आपको समझा सकती हूँ। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, चित्त प्रसादम, मतलब ये 4 आपके अंदर होने चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री मीनिंग फ्रेंडलीनेस, करुणा मतलब कंपैशन, mudita meaning respect, and upeksha meaning indifference. But this indifference is not a negative. I'll explain it to you. Negative indifference. Okay? Is this clear? अब मैं explain करती हूँ। जब रैंचो फर्स्ट आया तो सबसे ज्यादा दुख किन दो लोगों को हुआ? फरहान और रंजू। ये है मैत्री। हम दुखी हुआ ना, उसका दुख इतना नहीं होता है, लेकिन सामने वाला खुश हो गया। हे भगवान, कठोर, कितना कठोर दिल है रे तू। मैं दोस्त, वो दोस्त, मेरे को दुख, उसको खुशी। How could you do this to me? How is it possible? दुख. We forget the attitude of being happy in someone else's happiness. I love Three Idiots. It's a lovely book on Yoga Sutras. You know, if I were, I mean, I keep telling my guide, मुझे please एक मौका दे दो, मैं ना Three Idiots पे योगा सूत्र की एक एनालॉजी लिखना चाहती हूँ। It is a beautiful book, I mean, movie. The way that he's made it, it's beautiful. कौन फर्स्ट आया? रैंचो। ये लोग दोनों ने पढ़ाई की थी ना लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट फेल हो गए, लास्ट आ गए। फिर भी दुख क्यों हुआ? बेस्ट फ्रेंड था ना उनका, तो सब कष्टों से बचा रहा था उनको रैंचो, पर बहुत दुख हुआ। क्यों? वो बोलता भी है, साइलेंसर से ज्यादा दुखी 2 लोग और थे, वो थे हम। मतलब एनिमी से भी ज्यादा दुखी कौन था? वो दोस्त थे। एंड यू नो, दिस हैपेंस टू अस अननोइंगली। हम यू नो मॉडर्न डे में उसको कहते हैं नजर। ये नजर कोई एक स्क्रिप्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है, बाय द वे, ये सब स्टूपिडिटी है नजर। या बट what we do when we behave like this is we create a sanskar or a pattern. Let's say मेरी कोई friend है, okay, like let's say my best friend now has become a VP at Axis Bank, very good position, you know, we've studied together, grown up together. There are 2 ways I can look at it. One, I will be very happy for her, and खाली दिखावे की happy नहीं है, मन से मैं खुश हूँ. And दूसरा, I can be absolutely sad that ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं यहाँ योगा सिखाती हूँ फ्री में लोगों को, वो बन गई VP एक्सिस बैंक की। Yeah, everywhere in life you will have 2 sides to the coin. That's called as duality. ये दुनिया ही duality पे चल रही है। Okay? दिन है तो रात है, बारिश है तो धूप है, सब कुछ duality है, right? It's principles of duality. तो यदि उसकी खुशी में खुश हो सकती हूँ तो दुखी भी हो सकती हूँ, मेरे ऊपर है। Now, if I were to become unhappy in her happiness, क्या मैंने खुद के लिए स्ट्रेस क्रिएट किया कि उसके लिए? तो नजर उसको कहाँ लगी? मुझे लगी। उल्टा होना चाहिए, मैंने उसको नजर नहीं लगाई, मैंने खुद को नजर लगाई। Why? Because now I have learned to be unhappy in someone else's happiness. I am creating stress. वो तो जिंदगी में ग्रोथ ही रहेगी ना, वो हार्डवर्क करिए, ग्रो वो जितना ग्रो होगी, क्या मैं उतना स्ट्रेस बढ़ाती रहूंगी मेरा? No. So Maitri meaning practicing abundant joy. जो आपने लिखा ना वहाँ पे फॉर्मूला में फर्स्ट, that is abundant joy. कोई यदि सक्सेसफुल है to feel that happiness towards that, and you know we can do this even in our own practice. We can leave aside कि मेरे बटवा को क्या होगा या मेरे ब्रांड इमेज को क्या होगा. You can practice this every day. And there are so many opportunities that are thrown at you, which will help you to do this. Yeah. The second is Karuna. Karuna is the exact opposite of Maitri. कोई दुखी हुआ, हाँ, स्पेशली वो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कितनी खुश होती हूँ। अल्ले, आया ना मजा मुझे? देख देखो भगवान ने मजा चखाया, हाँ, देख देख कैसा मजा है। We forget the very basis of humanity. You know, you may not even say it out loud. Whatever I'm saying, आप ये बाहर नहीं बोलते, because we all grown up to a certain age कि आप मुंह पे नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा. But internally, you feel a kick. वो जो एक kick, वो एक happiness आती है ना,
That itself is a cause of stress. Why is that a cause of stress? You have given a signal, you have given a signal to your mind कि बुरा होना है ना अच्छा होता है, खुशी की बात होती है. आज वो उसके साथ हुआ, कल वो आपके साथ होगा. Yad bhavam tad bhavati. The book Secret. Has anyone heard of the book Secret? It is written on the basis of this very amazing Vedic line, Yad bhavam tad bhavati. हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो ना वो तुम्हारे साथ हो जाएगा. तुम क्या खुश हो ना उसकी बर्बादी में, अब तुम खुद बर्बाद होगे. Because the universe will actually receive the message कि ये खुश कब हो रहा है. Universe पता है बहुत unbiased है. Universe एक ऐसा अंपायर है जो चीटिंग नहीं करता, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करता. So universe बोलता है मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो तुझे खुशी देता है ना वो तेरे साथ हो बार बार. Unknowingly we are only creating our issues because हमने क्या सिग्नल दिया यूनिवर्स में, इसकी बर्बादी मेरी खुशी. तो उसको लगता है बर्बादी, इसको इसकी उसकी नहीं समझता यूनिवर्स को. बिकॉज फॉर यूनिवर्स आपके लिए मैं और वो अलग है. फॉर यूनिवर्स तो आप सभी क्या हो, ब्रह्मा. आप सभी ब्रह्मण हो. अहम ब्रह्मास्मि. हम सभी एक ही है यूनिवर्स के लिए. तो उसको क्या लगता है इसका दुख, खुद का दुख, सब दुख इसको खुशी देता है. वो आपके साथ वही करेगा, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा. You've created a sanskar, you have created a pattern. Yeah. And then comes mudita. Mudita meaning goodwill. Okay, I will explain this to you all in a very CA term. Goodwill. हम goodwill को पता है evaluate करते हैं. एक formula भी है goodwill का. कोई मुझे बोल सकता है? भूल गए? It's the earning capacity valued in terms of money, right? Very simply put. You are the next speaker, right? I figured. It was not that difficult. Hi. So, क्या वो अर्निंग अब तक हुई मेरे पास? क्या मुझे इससे कुछ बेनिफिट अभी तक हुआ? नहीं, मैंने गुडविल वैल्यू क्यों की फिर? Why have I valued it? The possibility of it giving me an extra revenue is nothing but possibility. What is the word that I've used? मैंने खुद की गुडविल बनाई. Okay. Now let's say कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने गुडविल बनाई है मार्केट में, या एंड he values his or her goodwill. हमारे अंदर पता है क्या पैदा होता है इमीडिएटली? हेट्रेड, ईर्ष्या, जेलसी. जेलसी, यस और नो? जेलसी का भाव आता है या नहीं आता है? मैंने पहले क्या बोला? दुख. इन मैत्री मैंने क्या बोला? कौन सा इमोशन आया? दुख, अनहैप्पी, सैडनेस. यहाँ पे मैंने क्या बोला? ईर्ष्या, जेलसी. इसकी गुडविल इतनी क्यों और मेरी इतनी क्यों? मेरे को भी मेरी गुडविल बनानी है. गुडविल बनाई नहीं जाती, बन जाती है. गुडविल कभी बनाई नहीं जाती. Yeah, we are all CAs. We love, evaluating everyone's goodwill. And शायद इसीलिए हम इस jealousy के, stress के जंजाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम हर किसी को वैल्यू करते हैं गुडविल. इसका आज का मार्केट का प्राइस क्या है, दाम क्या है, इसका शेयर कितना ऊपर है, इसका स्टॉक कहाँ है, नीचे है, ऊपर है. हम लोगों को भी उसी निगाह से अप्रिशिएट या वैल्यू करते हैं कि आज इसका स्टॉक ऊपर है, आज इसका स्टॉक नीचे है. We've become very good F&O operators, no? We're very good F&O operators. Most CAs are. हमारी बुद्धि बहुत चलती है, तो हमें लगता है हाँ इसका स्टॉक बढ़ेगा, चलो इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं. अरे ये दिख रहा है मुझे गिरने वाला, डाउनफॉल होने वाला, चलो यहाँ से खिसकते हैं. तो भैया लैंग्वेजेस यहाँ से कट लेते हैं. Yeah, you are again creating a stressful situation for yourself because आप उनकी ग्रोथ पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे, आप किसकी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो? अपने आसपास हर किसी की, कि मैं किससे दोस्ती करूं, किससे दुश्मनी करूं. That's it. That's your life goal now. Yeah. And the last one is upeksha. Let's say yoga does not, yoga and Jainism are very closely related when it comes to ahimsa. The only thing is yoga is a little broader in its understanding of ahimsa because it also encompasses ahimsa towards yourself. मतलब योगा बोलता है अहिंसा पहले खुद से शुरू होती है, तो ही आप उसको बाहर अप्लाई कर सकते हो. Yeah. Now, what is upeksha? Let's say आपने एक चोर को देखा, या you've seen somebody. Okay, see example. आप देख रहे हो कोई एक क्लाइंट है जो बहुत झोल कर रहा है, एंट्री पे एंट्री घुमा रहा है, पैसा यहाँ से साइफन ऑफ कर रहा है बाहर. Ahimsa means, unless you're, I'm sorry, I'm taking away from your topic of forensic accounting because I have been a forensic auditor. Our job is to report. वो हमारा कर्तव्य है that we report.
नाउ लेट्स से आपका जो रोजी रोटी है उस क्लाइंट पे चलती है, या आपकी रोजी रोटी उस क्लाइंट पे चलती है, आप नहीं रिपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज यदि आपने कहा कि मैं ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दूंगा, वो कल आपको बोलेगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर। Fortunately, हमें इतना, at least with certain listed companies and now even certain type of companies, like removal is not as easy. But जो individuals होते हैं उसमें तो रातों रात they'll be like, Tata, bye bye, see you. New auditor, yes, new account. So there's the fear of loss of business is so much that you can't really stop the other person from doing a wrong thing. Yeah. But what you can develop is the attitude of upeksha, indifference. आप morally उसके प्रति indifferent बन सकते हो, मीनिंग आप उस पाप के भागीदार मत बनो जो आपका नहीं है, आप इनडिफरेंट हो जाओ। मैं यूजुअली सबको ये कहती हूँ, यदि ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आके कहता है ना कि एंट्री कैसे घुमानी है जरा और बताओ, यू बिकम इनडिफरेंट, यू डोंट पार्टिसिपेट इन दैट, यू डोंट कंप्लेन, बिकॉज वो हिंसा उसके दिमाग में वो हिंसा कहलाएगी, बट आप पार्टिसिपेट मत करो उस पार्टिसिपेशन के ऊपर। Again, it's a nice story. I'll give you a little story time because the subject थोड़ा heavy हो रहा है. Participation. Bhishma Pitama. Does everyone know the most painful death in Mahabharata was of Bhishma Pitama? अगर किसी ने महाभारत देखी होगी टीवी पे, एक बाण की शैया पर उन्हें countless days के लिए छोड़ दिया गया. And कौन थे? Who was Bhishma Pitama? Devavrat. That man was the most great human being to be born on this earth. You know why? उन्होंने एक किंगडम त्यागा सिर्फ अपने पिता को, एक प्यार हो गया था एक नारी के साथ, सिर्फ वो एक उनकी विश को फुलफिल करने के लिए उन्होंने त्यागा क्या? किंगडम की, जो इसका बेटा होगा ना वो बनेगा राजा, मैं नहीं। उन्होंने सेलिबेसी का ओथ लिया बिकॉज उस लड़की के पिता ने कहा, चित्रांगदा, कि अगर इसका बच्चा हो गया तो फिर आपके मन में मोह वापस आ सकता है। He promised, he took a vow of celibacy just for his father. गंगा पुत्र थे, इससे ज्यादा प्योर कौन होगा? अपने जबान के इतने पक्के that उन्होंने जीवन भर, even when he knew that the Kauravas were wrong, he stood by them because उनका वो जबान के पक्के थे। Yeah, he was, अब in today's day and age you can say पगार वहां से मिल रही थी उनको, yeah, but in that he was very very loyal। तो उनको ऐसी मौत क्यों दी गई? प्रश्न पूछा, पता है भगवत महात्म्य है, मतलब जो इसकी कमेंट्री है, बाद में पूछा कि ऐसे पायस इंसान को इतनी भयंकर मौत क्यों? एंड देन कृष्ण भगवान said that उस दिन, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये वहां खड़े खड़े एक विटनेस बनकर सिर्फ उसे देखते रहे। He gave his silent affirmation to the most heinous crime that was committed. चुप रहे वो, and उस एज के थे कि he could have stopped. भीष्म पितामह थे ना, ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो पांडव और कौरवों के, ग्रैंडफादर भी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे। Couldn't he have stopped them? He could have easily stopped it, but out of his, fear or whatever attachments to the Hastinapur kingdom, he kept quiet. And that each baan was, symbolic of every tear that fell from Draupadi's eyes during the Chirharan. And इसीलिए कहा गया benevolent indifference। उपेक्षा का ये क्या मतलब कहा? benevolent indifference। जब तक किसी को हानि नहीं पहुंच रही, आप indifferent रहो। The minute you think that it is causing indifference, you come in your karta bhav and you flag it off. You understand? चित्त प्रसादम। हाँ, ये भी बहुत easy है practice करना। हमेशा याद रखना, कभी भी फरहान नाइट्रिक और राजुलाइजेशन नहीं बनना है, हमें बनना है खुश, हमें होना है खुश in the happiness of rancho. Is that okay? The next one is Kriya Yoga. ये मैंने पहले ही समझा दिया था, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। I have already explained. Very quickly moving to आहार, विहार, आचार and विचार, which was basically आप जो खाते हो इस आहार, आप जो खाते हो इस आहार। सबसे ज्यादा imbalance आता है ना, बहुत सारी पानी पूरी पेल लो, फिर क्या होगा नेक्स्ट डे? Imbalance, yeah? आहार with विहार, विहार मीनिंग आप जो लीजर टाइम में करते हो, बहुत ज्यादा सो जाओ। When you sleep a lot, you wake up with a headache.
हुआ है किसी के साथ? बहुत ज्यादा सो जाओ दिन में, उठोगे तो सर भारी हो जाएगा। विहार, इम्बैलेंस। आचार मीनिंग योर बिहेवियर विद अदर्स, आचार। एंड विचार, जो आप खुद सोचते हो। Yeah, these four things can again help you on the path of yoga. Neti I have already explained, and yama and niyam is basically अष्टांग योग, मतलब कहा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मतलब आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। यम सत्य बोलना है, यू हैव टू बी नॉन हार्मफुल। आस्तेय, चोरी नहीं करना। अब सीएस में क्या होता है चोरी करना? एंट्री चोरी करते हैं, एंट्री जो घुमाते हैं ना, वो आस्तेय का एंटी है बाय द वे। जो हम एंट्री हम घुमाते हैं ना, दैट इज एंटी आस्तेय। जस्ट टू टेल यू ऑल यार, तो ये मत बोलना मैं चोरी नहीं करता। करते हो, एंट्री घुमाते हो ना, तो आस्तेय का ऑपोजिट है। यार ब्रह्मचर्य, नॉन नॉन एक्सेसिवनेस। ब्रह्मचर्य का बहुत एक गलत, सेलिबेसी, वी यूज इट एज सेलिबेसी, बट ब्रह्मचर्य मींस नॉन एक्सेसिवनेस। अगर मैं जैसे मैं चाय के साथ बहुत अटैच्ड हूँ, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा अटैचमेंट उससे बहुत ज्यादा है। या एंड अपरिग्रह, होड़ नहीं करना। जितनी जरूरत हो उतना ही आपको इकट्ठा करना है, बिकॉज आए कहाँ से? पंच महाभूत से आए और वहीं जाना है। माय फादर सेज दिस, दैट एवरी पर्सन इन बॉम्बे, उसकी जीवन पता है कहाँ से? वो शुरू करता है भाईंदर से। जब तक बड़ा होता है, वो पहुंच जाता है कफ परेड, लेकिन धरती का पैसा धरती में ही डालकर निकल जाता है। पूरी जिंदगी लगा देता है, खून पसीना। एंड ही लव्स सेइंग दिस टू एवरीवन, ही सेज दिस टू एवरीवन। जब बॉम्बे में कोई आता है, वो शुरू हमेशा भयंकर, या वी ऑल, व्हेन इवन आई हैव ग्रोन अप इन दिस नेबरहुड, एंड देन पूरी जिंदगी की जो एक मेहनत बोल लो या जो भी गोल बोल लो, वो होता है कि मुझे एक हायर स्टेटस, एक हायर क्लास में जाना है। और फिर जब आप जाते हो, तो ना वो हायर स्टेटस, ना वो हायर क्लास, ना वो कफ परेड का घर, कुछ भी नहीं बचता। Yeah, so that is yam and niyam. And to end the slide, I would just say, if you want to implement whatever I have taught you today, the easiest way to implement is by contemplation. Like I said, abhyas vairagya सबसे easy तरीका है। आप खाली contemplate कीजिए आप जो कर रहे हैं जीवन में, and thought, feeling and attitude, watch your thoughts. हमें स्कूल में सिखाया गया वॉच योर एटीट्यूड, और हम बन भी यही गए ना, हम सबका एटीट्यूड करेक्ट करते रहते हैं। योर एटीट्यूड इज नॉट राइट, फिक्स योर एटीट्यूड, फिक्स योर एटीट्यूड। एज Brits, this I call this a very colonial way of teaching. This was colonization. हमें सिखा दिया गया बाबू साहब। So what was fixed? Our attitude was fixed. हम ये भूल गए कि एटीट्यूड जो है ना, वो एक फीलिंग का आउटकम है, और फीलिंग आती है हमारे विचारों से। लेट्स से आज आपका जो थॉट है वो है बहुत गुस्से का, तो आपके अंदर फीलिंग क्या आएगी? एंगर की ना, एंगर की फीलिंग आएगी। गुस्से का थॉट है, फीलिंग आएगी एंगर की। तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो ऐसा होगा कि ऐसा होगा, बिकॉज गुस्सा है तो मुझे मेरा फाइट एंड फ्लाइट अप्रोच एक्टिवेट हो गया है। So you can't fix the attitude without fixing the. On that note, I would like to end this very, very lovely morning session that I had with you all. Some great company, and thank you for being lovely audience. आपने participate किया, and I thank each one of you. Thank you, Rishika, for this very eye-opening session. I hope we all have a few takeaways. अब चाहे अभ्यास वैराग्य बोले या नेति नेति, या जो भी हम याद रख पाए और उसको प्रैक्टिस कर पाए, तो हम सबको फायदा होगा। To propose a formal vote of thanks, I would like to invite C. Vijita Jaiswal ji. And also there will be an announcement after the vote of thanks, so please wait for 2 minutes by Mahesh Magaria ji. Okay, we also have lucky draws after the vote of thanks. Yeah. Thank you so much, Purvi. So Bhagavad Gita में लिखा ही है
कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है. In reality, the only way out is in. So CA Rishika Shah has very successfully amalgamated our CA thought processes with the principles of yoga in a simple and lucid manner, and she has put her lives in the perspective of balance sheet, the balance sheet of life. So her session today has just been like a tip of the iceberg, just a tip. And I hope we have been inspired today to dig in deep and try to get to the hidden aspects of this huge wealth of knowledge. Thank you, Rishika, for igniting the spark. And thanks to the coordinator of the event, our past convener, CA Jay Shah and Kailaji Karapuga, and the management of Koinur, of course. Thanks to all of you members for being here present in large numbers and actively participating. Now we will take a short break of 15 minutes and reconvening for the next session as our next speaker is already here. And of course, yeah. Announcement. Yes, we have a very important announcement. Mahesh is giving. Friends, wait for 1 minute. Very big announcements. I'll give you the 2 items. Next Sunday, we have kept our next meeting here only on the 2 topics. That is the Indian equities, opportunities and challenges on capital market. And speaker is none other than CA Vikram Kotak, who have been here earlier. So don't forget to come and see what is Uthal-Puthal is going on in the capital market. And the bank branch audits are on the corner. For that, we have kept complexities in bank branch audits. That is by CA Sanjay Khemani. That will be the second topic. So both are very important current related topics. So don't forget to join next Sunday. And the second very important topic is that we have found a new venue in the Novotel on the corner of that Marul Naka. Before that, I think everybody must be knowing the Novotel, where we invite you all for dinner on 18th. 17th is our program here in the morning. Next day on Monday evening, 6 to 8, our newly president is coming. So we'll meet, greet, and JB Nagar will honor them. So it is our great opportunity to meet the president. This we are keeping jointly hosting with the WIRC. So a lot of other people will also be there. So I request each and everyone to bring his friend, chartered accountant, so he can introduce to the president, Ranjit Kumar Agarwal, correct, from Kolkata. Yes. Yes. So I hope, please raise the hand. Everybody will come on Monday evening for very delicious dinner. We have tasted yesterday. Good. So now some lucky draws. ऋषिका जरा निकालिए 2 लकी ड्रॉ निकाल दीजिए एक बात के लिए रखेंगे